और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते राजधानी भोपाल, जहां एआई इम्पैक्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। Sustainability and public policy. Now let's welcome Shri Rajat Arora from Google to join us. It's a strategic, non-financial collaboration between Google and MPSEDC to support AI adoption, cloud advisory, pilot AI ML use cases, and capacity building across government departments. Let's welcome Shri Ankit Bose from NASSCOM to join us on the stage. It's a collaboration to establish and operationalize an AI Center of Excellence to promote AI adoption, skilling, startup engagement, and innovation in the state. Now please help me welcome Shri Siddharth Chaturvedi from ISECT to the stage. A partnership to promote AI awareness and digital literacy through the Kaushal Rath Mobile Outreach Initiative, particularly in rural and underserved regions. May I request Shri Abhishek Nag from Bhashini to please step up. It's a collaboration to enable multilingual governance by integrating Bhashini language technologies, transition APIs, and language tools across state government platforms. And now, ladies and gentlemen, on the path of strategic partnerships, it is my privilege to announce the signing of one more MOU between the Government of Madhya Pradesh and India AI. May I request Srimati Shikha Dahiya, Joint Director, Ministry of Electronics and IT, and Mr. Basant Kure, IAS, to please join us on the stage. Thank you, gentlemen. Thank you, ma'am. To democratize access to high-quality AI education, India AI is setting up 570 data and AI labs in Tier 2 and Tier 3 cities across the country. These labs, including those hosted at NILET centers and in government ITIs and polytechnic institutes, will provide hands-on exposures to tools, data sets, and problem-solving environments. They act as local hubs for innovation, experimentation, and collaborative learning. In collaboration with Department of Technical Education, Skill Development and Employment, Government of Madhya Pradesh India AI Mission will be supporting the establishment of 30 data and AI labs across Madhya Pradesh. और अब देवी और सज्जनों, कार्यक्रम में जन सहभागिता का उदाहरण आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाल ही में 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। दोनों ही प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब समय आ गया है विजेताओं को सम्मानित करने का। देवी और सज्जनों, पहली प्रतियोगिता थी MP इनोटेक, जिसमें 135 प्रतिभागी थे, जिनमें से टॉप 3 को आज यहां चुना गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे विजेताओं को पुरस्कृत करें। Ladies and gentlemen, we are announcing the second runner-up, V-Fuse Metal for Manufacturing Private Limited, and he is winning 1 lakh rupees plus trophy for this competition. After that, I would like to request the first runner-up, in Quantic Technologies Private Limited, winning 2 lakh rupees plus trophy for this wonderful. Congratulations to all the winners. और अब हम उस क्षण की ओर अग्रसर हैं जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को थी। देवी और सज्जनों, जहां नेतृत्व दूरदर्शी और संकल्प दृढ़ हो, वहां तकनीक स्वयं दिशाएं गढ़ती है। यह हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके सशक्त, कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर विकास, नवाचार और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आइए करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें। अभिनंदन। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के इस मंच पर विराजमान ACS अनुराग जैन जी, अभिषेक जी, संजय दुबे जी, अमिताभ जी, भरत सोंधी जी, सुनील कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, रजत जी, अरोड़ा जी,
अंशुमन राज जी, तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन में लंबी लंबी लाइन लगती है और लंबी लाइनों में समय पास करने के लिए एक अच्छा नारा लगाते हैं, गोविंदा गोविंदा, खूब आनंद से बोलते हैं। उस गोविंदा गोविंदा के आयोजन में जैसे वो नारा लगाते हैं तो एक ऐसे नव दंपत्ति भी लाइन में लगे थे, वो सब गोविंदा गोविंदा के आनंद में डूबे हुए, लेकिन एक नव दंपत्ति में पति तो गोविंदा बोल रहा लेकिन पत्नी पता नहीं क्या बोल रही है। तो लोगों का ध्यान गया, ये क्या नया नारा आ गया, यहाँ तो गोविंदा की आदत है। तो ध्यान से सुना आसपास वालों ने कहा आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है। अब लोगों का समझ में नहीं आया कि ये क्या नारा हो गया। तो पास वाले ने पूछा कि ये आपकी पत्नी क्या बोल रही है, तो उन्होंने कहा ये सही बोल रही है। तो उन्होंने कहा सही क्यों बोल रही है? तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जिस जगह से आते हैं वहाँ हमारी एक परंपरा है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं बोलती है, तो मेरा नाम गोविंदा है, तो ये बोल रही आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है, ये आगे वाला बोले वही सही है। इतने अच्छे अच्छे भाषण हो गए तो मुझे लग रहा कि वो मेरे पे फिट बैठ रहा, आगे वाला बोले वही सही है। इससे अच्छा भाषण क्या हो सकता। सारी बातों का निचोड़ आ गया, मैं भी वही बोलूंगा जो पहले बोल गए। लेकिन हमारे लिए आज के इस दौर में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने प्रकार से सोच भी रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है, और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोनों अद्वितीय महापुरुष, एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, दोनों के अपने बुद्धि, उनकी बुद्धि की भी हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अभी हम बुद्धि विवेक इसका भी अंतर करने जाएंगे तो एआई और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियाँ जाने कहाँ के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि। अभी मंत्र यंत्र तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। हमको वो भी आनंद आता है। दुनिया उसको कहाँ से कहाँ ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पे चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता, वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है, हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है,
भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है, ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूँगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज, ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने आज के इस अवसर पर। जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूँगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे हैं। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।